Assalamu alaikum everyone. Hello, everyone, and welcome to our today's session. I am Ait Fatma Malik. Currently, I am working as a social media head of science and technology online. I am your host in today's webinar. Good evening to each and every person here. I welcome to all the students, professionals, and speakers. Today, we will discuss about a journey towards circular economy and sustainable living, collaborated with science and technology online. First of all, I want to tell you briefly about Eco Foundation. Eco Foundation is working to make a positive impact on the planet. This foundation is dedicated to creating a sustainable future. As you all know, industrial waste is one of the major factor of climate change, and the one of the major solution of industrial waste is recycling. Due to this climate change, every industry is trying to promote sustainability. So, related to this topic, Eco Foundation is collaborated with Science and Technology Online and arranged this webinar. Now, I would like to share some rules with you all for this webinar. Kindly mute your mics during class. Raise your hand virtually for permission to speak. Avoid asking questions without instructor's permission. Be quiet when the speaker is talking. One more interesting thing in this session is that we will share a question answer link to you all in the group, and those who answered 60% from all the questions will get free of course certificate. Kindly stay with us and increase your knowledge. Hope so you all will enjoy our today's webinar. If you guys have any question related to this webinar, don't hesitate and ask it at the end of this webinar. So, without wasting time, let's start our today's session. Our today's speaker of this webinar are founder of Eco Foundation, engineer Adil Ahmed from Wabda Town, Lahore, and consultant microbiologist Tokir Yusuf, sales application specialist Merck, Millipore, and Sigma. First of all, I would like to invite consultant microbiologist Tokir Yusuf. Kindly, sir, guide us about this most important topic. Over to you, sir. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I hope you all are doing well. Please confirm my voice is audible. Yes, sir. Kindly continue. Thank you so much. We will be discussing about circular economy and ecosystem and changes in our ecosystem. तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा सिंपल रखूं. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इको फाउंडेशन के बारे में आप लोग जानते हैं. तो इस प्लेटफॉर्म से हम आज आप 15 से 20 मिनट हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे आ रहा है. क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उसकी वजह से हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या हो रहा है और हम सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू अपने क्लाइमेट को कैसे सेव कर सकते हैं. तो इस पे जो है हम आज डिटेल में बात कर रहे होंगे. क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज है क्या? बहुत ही सिंपल चीज है. हम डेली लाइफ में अपने ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. हम अपनी सराउंडिंग में अपने इकोसिस्टम में ऑब्जर्व कर रहे हैं. आजकल आप देख रहे हैं कि सर्दी जो है, जो विंटर सीजन है, ये पिछले साल से बहुत डिफरेंट है. अगर लास्ट ईयर की बात करें तो फेब के स्टार्ट में क्लाइमेट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था. इस दफा जो है वो और है. तो ये क्यों है? क्योंकि हम क्लाइमेट में थोड़ा सा चेंज लेके आ रहे हैं. अब क्लाइमेट चेंज कैसे आ रहा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर पर्सनल जो हमारी है एक्टिविटीज, वो इसमें इन्वॉल्व है. अब कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा. हम बहुत शॉर्टली बात कर रहे होंगे कि क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है. तो एक तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको अगर हम विदाउट एनी प्रिकॉशन कोई भी उसके ऊपर पैरामीटर लगाए बिना यूज कर रहे होंगे. एक तो आपको आइडिया होगा कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास जो नेचर ने हमें गिफ्ट में दिए हुए हैं. एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल. तो बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो कि हम यूज करते जाएंगे, वो दोबारा बनते जाएंगे. लेकिन बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो हम यूज करेंगे तो उसके बाद वो रिन्यू नहीं होंगे. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ये तो रिन्यू हो रही है. प्लांट्स हमारे लिए बना रहे हैं और बहुत से सोर्सेज हैं जहां से ये आती जा रही है. और अगर मैं मिनरल्स की बात करूं जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे यूज हो रहे होते हैं, तो मिनरल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है. मतलब जमीन के नीचे उनको हम या फिर डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, उनको कंज्यूम कर रहे हैं और वो रिन्यू नहीं होते. जो है वही रहेगा. तो अगर हम एक बैलेंस रखें अपने यूज में इस तरह से कि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो,
कि जितनी कोई चीज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यूज करें, और कोई एक्स्ट्रा चीज जो है वो अपने इन्वायरमेंट में रिलीज ना करें। जिससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। अब इकोसिस्टम को हमें, हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमारी जो ट्रैफिक है उसकी गैसेज, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करती हैं। अगर हम डिटेल में बात करने लग जाएं तो आई थिंक के बहुत सारे दिन लगेंगे इस पे बात करने में। लेकिन हम शॉर्टली बात करते जाएंगे ताकि जो है हमारे पास थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हो, क्योंकि मेजर जो है हमने डिस्कस करना है सर्कुलर इकोनॉमी। कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज है इसमें, मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा बता चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को भी आइडिया है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, हम डेली लाइफ में बहुत सारा फ्यूल जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, अपनी गाड़ियों में, इंडस्ट्री में, डिफरेंट फॉर्म्स में हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। डिफॉरेस्टेशन हो रही है, बहुत तेजी से जंगलात कट रहे हैं। हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप भी देख रहे होंगे कि डिफरेंट साइट्स पे जहाँ पे फॉरेस्ट फॉरेस्ट थे, या स्पेशली हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो एग्रीकल्चर लैंड की है, कि जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था वहां पे अब जो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि डिफरेंट टाइप की पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती है। नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सारी जो है वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है बहुत हमारी चेंज हो गई हैं। आपको पता है कि हमने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। अब पेस्टिसाइड जो है वो आपको आइडिया है कैसे इम्पैक्ट करती हैं, कि आप जब एक इकोसिस्टम में किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन को या फिर एक स्पेसिफिक पेस्ट को आप किल करते हैं, तो हो सकता है वो किसी के लिए खाना हो। ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगा तो उसको खाने वाला भी खत्म हो जाएगा। और जब वो खत्म होगा, हो सकता है वो आगे किसी का, एक फूड चेन होती है, आपको आइडिया, तो पूरी पूरी फूड चेन डिस्टर्ब होती है, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम इफेक्ट होता है, हमारा क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बहुत अच्छी तरह सब आप लोग जानते हैं कि जो डिफरेंट गैसेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक मतलब ओवरऑल हमारी जो इकोसिस्टम को, हमारी अर्थ को कवर कर रही है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब इससे हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है। अब जब चेंज होगा उससे क्या इफेक्ट होगा, पहले तो ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत गर्मी हो गई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी, और दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में जो है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग ने बहुत इफेक्ट किया हुआ है। इवन के ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, और आपका सी लेवल जो इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, हमारा जो अपना कराची है वो भी इस चीज से अफेक्टेड है, कि जो सी लेवल है इंक्रीज हो रहा है, और वो एक टाइम आएगा कि हमारा जो कराची वाला एरिया, सिंध वाला एरिया, इस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा उसका, कि जो हमारा शहर है वो पानी में डूब सकता है। और ये बहुत ज्यादा चीजें ऑब्जर्व की गई हैं दुनिया में। राइजिंग टेम्परेचर है, आप लोगों को आइडिया है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज है, चेंज इन वेदर है। मतलब अब तो अगर आप देखेंगे रेनिंग सीजन जो है वो भी बहुत इफेक्ट हो गए हुए हैं, हमें आर्टिफिशियली जो है वो रेन करवाना पड़ी। बहुत एक कॉमन आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी स्मोक का इफेक्ट जा रहा है पाकिस्तान में भी, क्या पूरी दुनिया में ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो स्मोक जो है वो एक क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। हीट वेव्स हैं, एक्सट्रीम इवेंट हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके, कि इस पे भी अगर हम बात करने लगे तो इसके लिए भी पूरा लेक्चर चाहिए होगा। सॉलिड वेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब सॉलिड वेस्ट जो है हमारे क्लाइमेट को कैसे डिस्टर्ब कर रहा होगा। इसमें अगर मैं किसी एक चीज को एग्जांपल लेके आगे बात बढ़ाऊं तो शायद जो है वो अच्छा आपको समझ आ सके, कि अगर हम प्लास्टिक की ही बात कर लें, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है दुनिया में। एक प्लास्टिक है वो ना सिर्फ इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, बल्कि मतलब सब जो है वो, कोई भी इंडिविजुअल है वो प्लास्टिक यूज कर रहा है, और प्लास्टिक की वजह से हमारे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम इकोसिस्टम में आ रही है आप देख सकते हैं। अगर मैं एक चीज को लेके सिर्फ बताता चलूं कि एग्रीकल्चर पे बात कर लें, तो एक, आप अगर विलेज लाइफ को कोई जानता है तो वहाँ पे एक जो वेस्ट मटेरियल होता है, वहाँ पे एक प्रैक्टिस होती है, उसको ट्रांसफर करते हैं अपने जो है वो खेत है वहां पे ट्रांसफर करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर। अब हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल भी उसमें मिक्स हो जाता है। जब प्लास्टिक मटेरियल आएगा और वो सरफेस को कवर करेगा, क्या करेगा वो, जो वाटर एब्जॉर्ब होना है उसको रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, और वो एरिया फर्टाइल नहीं रहेगा। तो जितना मर्जी हम वर्किंग कर ले, प्लास्टिक जो है वो एग्रीकल्चर लैंड तक भी पहुंच रहा है। ये एक इफेक्ट था सिर्फ प्लास्टिक का, इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट हैं जो कि हो सकते हैं। नहीं जी, अब जो हमारा मेन टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी, हम उस पे आ जाते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। मैं पहले सिंपली बता देता हूँ कि सर्कुलर इकोनॉमी होती क्या है, कि जब आप कोई चीज बना रहे हैं, एक सर्कल चल रहा है किसी भी चीज का, तो उसमें इस तरह से उसे चलाया जाए कि कोई चीज एक्सटर्नली उसमें इंट्रोड्यूस ना करवानी पड़े, एक ही चीज है वो चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने प्लास्टिक की बात की, हम अगर प्लास्टिक यूज करते हुए इस तरह से उसको यूज करें कि जो चीज वेस्ट होती है उसको हम
रिसाइकल कर लें। एक 3R का फॉर्मूला आप लोगों को आइडिया होगा कि री यूज है, रिसाइकल है, एंड आई डोंट रिमेम्बर द थर्ड वन। उसमें मतलब कि आप रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, और सॉरी रिड्यूस करते हैं। थर्ड आर इज फॉर रिड्यूस, कि आप चीजों का कम इस्तेमाल कर लें, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रीयूज कर लें, रीयूज के बाद अगर वो उसकी शेप नहीं रही या वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो आप उसको रिसाइकल कर लें। दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर इकोनॉमी, कि आप एक ही चीज को बार बार यूज करें और मैक्सिमम जितना बेनिफिट उससे ले सकते हैं उससे ले। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं उसमें जो इरिवर्सिबल है, कि जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, वो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली हैं उनके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। एक बहुत ही कॉमन न्यूज है, शायद आपके नॉलेज में भी हो, कि अभी जैसे गल्फ कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमी में चेंज लेके आए हैं, कि पहले उनका टोटल जो होता था वो सारा होता था किस पे, ऑयल एक्सपोर्ट पे, लेकिन अब उनकी इकोनॉमी वो डिफरेंट चीजों पे लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ऑयल जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगा। जब ऑयल खत्म हो जाएगा तो उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, तो इसीलिए उनको पता है ये इरिवर्सिबल है। तो वो एक सस्टेनेबल और सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ आ रहे हैं, कि वो ऐसी इकोनॉमी हो जो कि जिसमें चीजें रीयूज हो सकती हो, रिसाइकल हो सकती हो। तो नेक्स्ट दी सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, वो मैं ऑलमोस्ट साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो मतलब कि इसमें ये होगा कि आपके एक तो रिसोर्सेज बचेंगे, कम यूज होंगे, और आपकी नेक्स्ट जो जनरेशन आ रही है उनके लिए सेव हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिकल एडवांटेज भी हैं, कि जैसे जॉब्स क्रिएट होंगी जब आप एक चीज को रिसाइकल प्लांट लगाएंगे। जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोका कोला ने इस्लामाबाद में एक जगह पे अपना एक मशीन लगाई थी, जहाँ पे आप अपनी यूज बोतल जो है वो प्लास्टिक की उसमें डालेंगे तो आपको कूपन मिलेगा एक, जो कि KFC और डिफरेंट, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ ब्रांड। तो वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं कूपन को। तो ये एक स्ट्रेटजी है, एक तो सर्कुलर इकोनॉमी की, दूसरा कि एक चीज को रीयूज करने की, रिसाइकल करने की। तो इस तरह से मतलब कि जब आप रिसाइकलिंग प्लांट लगाएंगे वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो बिजनेस कॉस्ट भी कम होगी। तो मतलब आपने प्लास्टिक नया बनाने के बजाय पुराने को दोबारा से यूज कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी, बिजनेस की सेव होगा। तो सोशल इम्पैक्ट भी है इसका, कम्युनिटी कम्युनिटी इंगेजमेंट है, कि आप लोग जब एक दूसरे के साथ मिलके एक सर्कुलर इकोनॉमी में काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, इंटरलिंक बनेगा। ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग घर में कभी ऑब्जर्व किया हो तो पुरानी चीजें जो है कबाड़ियों को देते हैं। अब अगर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली बजाय बाहर फेंकने के एक कबाड़िए को मिलना जुलना स्टार्ट हो जाएंगे, कि अपनी चीजें उस बंदे को दें जो कि उसको रीयूज कर सकता है या रिसाइकल करवा सकता है। तो क्या होगा, आपका एक सोशल इंटरेक्शन भी होगा और लोग करीब आएंगे, जो कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में डिस्टेंस काफी हो गया। एम्ब्रेसिंग सस्टेनेबल लिविंग, तो जी हम कैसे इसको कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ है उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे जी। तो हमें हार्मनी विद सर्कुलर इकोनॉमी, हमें देखना होगा कि जी सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे अडॉप्टेशन आ सकती हैं, कैसे हम इसको अपना सकते हैं, कैसे हम इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। डेफिनेशन एंड इंटीग्रल कंपोनेंट्स जो है वो मैं काफी हद तक बता चुका हूँ, कि सस्टेनेबल लिविंग में ये होता है कि हम एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारें। बैलेंस्ड लाइफ में अगर हम बैलेंस की बात करें, बैलेंस किसी भी चीज में अगर आप देखें तो वो जरूरी होता है, चाहे वो डाइट है, चाहे आपकी इकोनॉमी है, चाहे आपका लाइफ स्टाइल है, तो उसमें हर चीज में बैलेंस जो है वो जरूरी है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो हमें यहाँ पे सस्टेन किसको करना है, अपने रिसोर्सेज को, कि रिसोर्सेज जो है हमारे इस तरह से हम यूज करें कि वो सस्टेन रहें, और उतने यूज करें जितने रिवर्सिबल हो सकते हो। जो इरिवर्सिबल है उसका यूज जो है मिनिमम हो जाए, तो क्या होगा, हमारे पास एक लंबे अरसे तक जो है वो रिसोर्सेज बच सकते हैं, ताकि अगर ऐसा वक्त आए कि जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, हमारे पास जो है उसके जखायर मौजूद हो। एम्पावरिंग थ्रू इंडिविजुअल एक्शन, तो डेफिनेटली कोई भी एक इंडिविजुअल है वो बहुत मैटर करता है। कभी भी आप ये नहीं सोचिएगा कि यार सारे ये कर रहे हैं तो मैं नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। आप किसी एक बंदे का भी, आप में से कोई एक भी अगर स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली इट मैटर्स अ लॉट। आप किसी एक की जो काविश है वो चेंज लेके आ सकती है। तो हमेशा अपने से ही स्टार्ट किया जाता है। तो जो चीजें हैं आपको, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में बात नहीं की कि एक एक चीज जो है वो बताई जा सकती, कि जहां पे आपको लगता है कि ये जो रिसोर्स है मैं कम यूज करूंगा या करूंगी तो फायदा हो सकता है, तो उसको आप सोचे डेली लाइफ में जो है वो उसको
क्या करें जी, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और जो आपके कोलीग्स हैं, सराउंडिंग है, सोशल मीडिया है, आपके जो सोशल सर्कल्स हैं, आपके फेलोज हैं, उनसे भी इन चीजों को डिस्कस किया करें। क्योंकि मैंने देखा जब भी हमारी सोशल गैदरिंग होती है तो उसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो डिस्कस हो रहे होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो अगर हम अपनी सोशल गैदरिंग्स में इस तरह के इश्यूज को भी हाईलाइट करें तो डेफिनेटली इट विल वर्क, और एक चेंज नजर आ सकता है हमारी सोसाइटी में। जैसे मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि एक सोसाइटी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ था, प्लास्टिक बैन किया हुआ था। और अगर मुझे अपना पुराना वक्त अगर मैं याद करूं अपने जो बड़े हैं उनका, तो हमें भी याद है जब घर वाले सब्जी लेने जाते थे तो उनके पास एक वो प्लास्टिक का बैग नहीं होता था, कपड़े का घर का सिला हुआ बैग होता था जिसमें जाके वो सब्जी डाल के लाते थे। तो ये चीजें अभी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। तो हमें इस पे अपने मतलब पेरेंट्स को भी अपनी सराउंडिंग को गाइड करने की जरूरत है। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है जो मैं प्लास्टिक की दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो मैसेज था वो मैं ऑलमोस्ट दे चुका हूँ कि हम इस पे जो है वो किसी एक इंडिविजुअल की भी जो एफर्ट है, डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल वर्क। तो आप सबको जो है वो इस सेशन का और इको फाउंडेशन का पर्पस ही यही है कि हमें जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है और सबको जो है मिलके इस पे जो है अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your kind words and your time. Now, I would like to invite Engineer Adil Ahmed. Sir, kindly share your thoughts with us. Over to you, sir. मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मर हूँगा। बेसिकली सर्कुलर इकॉनमी है क्या? सर्कुलर इकॉनमी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो चीज़ें जो आप रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा इकॉनमी में पुट इन कर सकते हैं, उसको आप वेस्ट में ना फेंकें। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। हम सब घरों में सब्जियां, फल सब्जियां यूज़ करते हैं और उससे बहुत सा वेस्ट, उसके पत्ते और बहुत सी वेस्ट पैदा होता है। अगर हम उसको फेंकने के बजाय उसको चॉप डाउन करके अपनी जो गार्डन में उसको बरी कर दें, तो उस तरीके से हम उसको दोबारा अपनी इकोनॉमी के अंदर एक तरह का पुट कर रहे हैं। हम उसी जो सब्जियां हैं उनको दोबारा ज़मीन में कर रहे हैं और वो फर्टिलाइज़र बन के एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू दोबारा न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम सारे अपने लेवल पे भी सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाए, वो कोलैबोरेशन करें, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इंडिविजुअली लेवल पे शॉपर जो हैं वो कम इस्तेमाल करें और हर जो चीज़ जो हम रीयूज़ कर सकते हैं उसको करें। और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है उसको हम जो है गार्डनिंग के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें बजाय वेस्ट में फेंकने के। और इसी तरह जो दूसरा जो रिसाइकल हो सकती चीज़ें, उन सबको हम रिसाइकल करें। और उसके बाद एंड में मैं ये एक मिसाल देना चाहूँगा इंडिया की। इंडिया का एक छोटी सी स्टेट है केरला। वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि सबसे बड़ा जो वो पाकिस्तान की तरह वहाँ पे वेस्ट क्या होता था, ऑर्गेनिक वेस्ट होता था। जो फल फ्रोश सब्जी फ्रोश, उन्होंने क्या करना कि पत्ते और इस तरह की चीज़ें सड़क की साइड पे फेंक देना। वहाँ पे उनको आइडिया है, उन्होंने ये सब कुछ जमा करना शुरू किया। इस सब को जमा करके उन्होंने काउस को फीड किया। और जो काउ डंग हमारे पास जो मतलब इसका गायों का फुजला है, उसको उन्होंने फीड किया हमारे जो वर्म्स हैं उनको। और जो वर्म से हमारे पास जो पैदा होती है, जो उनकी एक्सक्रीशन, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट है। बाहर के मुल्कों में बाकायदा वर्म के फॉर्म्स होते हैं, जो वर्म्स को वहाँ पे फीड दी जाती है और जो उनका वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर सेल किया जाता है। इस तरीके से उन्होंने एक तो अपना वेस्ट कम किया, ऑर्गेनिक वेस्ट। दूसरा, उन्होंने एक फर्टिलाइजर फॉर फ्री पैदा की और वो उन्होंने किसानों को दिया। जिस तरह आपको पता है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर के बहुत से नुकसान अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ दुनिया जा रही है। और ऑर्गेनिक वे जो फर्टिलाइजर, वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी का। इस तरह उन्होंने सर्कुलर इकोनॉमी के थ्रू एक छोटी सी स्टेट ने सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए, सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए एक पूरा अपने एक चेंज लेके आया। कूड़ा साफ हो गया उनका और उनके किसानों को बहुत सस्ती डर्ट चीप जो फर्टिलाइजर मिलना शुरू हो गई, ऑर्गेनिक वे फर्टिलाइजर। अब आप सबसे एक लिंक शेयर किया जाएगा, उसमें क्विज होगा। वो क्विज के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 5 मिनट्स होंगे। वो जो जो पार्टिसिपेंट्स फिल इन करेंगे उन सबको सर्टिफिकेट्स ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएंगे। अभी मैं आपके चैट में लिंक शेयर कर देता हूँ और ये ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए अवेलेबल होगा लिंक। कोशिश करें सारे उस टाइम के अंदर अंदर फॉर्म फिल कर दें। जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारे इसको लाजमी फिल करें और इसके बाद आपको ईमेल के थ्रू आपके सर्टिफिकेट्स रिसीव हो जाएंगे। और चलिए इसका टाइम मैं 10 मिनट्स का देता हूँ ताकि हर कोई इजीली जो है ना कर सके। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सर्टिफिकेट्स का फ़ायदा। बेसिकली आप सबने देखा होगा कि रिसेंटली एक नेस्ले का ऐड आया है जिसमें उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रॉस को रिमूव करके पेपर स्ट्रॉस शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इस टाइम जो है सस्टेनेबल इकॉनमी की तरफ जा रही है।
सो अगर हम इस तरह की सर्टिफिकेट्स लेते हैं उसका ना सिर्फ हमें फ़ायदा होता है, लेकिन कल को अगर हम जॉब के लिए कहीं जाते हैं वहाँ पे हम दिखाते हैं कि हमने सस्टेनेबिलिटी पे एक सेशन लिया हुआ है। सो ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रही हैं वो इसको बहुत गुड गेस्चर के तौर पर लेती हैं। सो वो आप सब पार्टिसिपेंट्स को इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड पे अगर कोई ऐड करना चाहता है तो काइंडली ही कैन रेज हिज हैंड। आई वुड हाईली इनकरेज अगर एंड पे सारे रिएक्शंस शो करें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सकें अपनी वर्कशॉप का। और ओके, और जो जो ये क्वेश्चंस फिल करता जाए प्लीज राइट डन इन द चैट बॉक्स ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि यू हैव शेयर्ड योर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई वुड लाइक टू कॉल आयत फातिमा टू कंक्लूड दिस सेशन। बाकी कोई जो है वो 10 मिनट्स के बाद ऑफ हो जाएगा। सो कोशिश करें जिनका रह गया वो 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दें। Thank you, sir, for your kind words. Now it's time to conclude our today's session. Thank you, everyone, for joining us. Hope so you enjoyed our today's webinar. Thank you for your time. Thank you. God bless you all. Best wishes. Allah Hafiz.